Hello everyone, welcome to the selection classes. So this is the next part of the video in which I'm going to take 100 questions for the upcoming Z examination. I have already uploaded 7 parts in the where I have discussed around 60 questions. So 40 odd number of questions are left, and hopefully I'll be uploading the rest of the questions in 1 or 2 days so that you can have the 100 questions. And if you want the PDF, you can join the Telegram group, the selection classes. So without wasting much time, let us start the today's video. So we have the first question. And it is saying very good question actually. A total of 15 teams participated in a tournament, and each team plays with every other team once. A team gets 3 points for win, and if the team is getting win, plus 3 point, draw 2 points, and lose 1 point. Right. So the team which score the least The team which scored the least got 21 points. The score of all the teams were distinct, and at least one match played by the winning team was drawn. कम से कम एक मैच तो ड्रॉ हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है. And which of the following is always true about the winning team? Very important and very interesting question actually, right? So सबसे पहले तो we have 15 teams and each team has played with each another team. So number of matches की अगर मैं बात करूँगा, so number of matches would be 15 C2, or I can say 15 into 16 divided by 2. Sorry, 15 into 7 आएगा ना, 15 into 14 divided by 2. So that would be 105 matches have been played. Right. Now, if I talk about the total number of points, because for each match, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, so either team can win and lose, so 3 plus 1, so 4 points can be distributed, and there is another case, draw and draw, so again 4 points. For each match we have 4 points, so means total points कितने बनेंगे, that would we have 105 matches, and for each match we have 4 points, so 420 number of points that has to be distributed among the teams in the 105 matches. Hopefully यहाँ तक clear है. Now it is saying that the team with the bottom got 21 points, right? So 21 points मिले हैं सबसे नीचे वाली टीम को, and it is saying the score of all the teams were distinct, and at least one match played by the winning team was drawn. ठीक है, तो विनिंग टीम का कम से कम एक मैच तो ड्रॉ है, ऐसा वो बोलता है. नो प्रॉब्लम. सो इफ आई टॉक, दैट इज जो लीस्ट वाली टीम है उसके 21 पॉइंट्स है, एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात करता है, एंड वी वांट all the points to be 420 as a sum. So if I just like want to minimize, and बोलता है कि डिफरेंट इंटीजर्स है, तो नेक्स्ट जो टीम है जो 14th नंबर पे होगी, मान लेते हैं उसको 22 पॉइंट्स मिले, फिर 23, फिर 24, एंड इफ आई गेट लाइक 15 वी हैव टीम्स. सो यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 35 है ना, ये टॉप टीम हो सकती है जिसकी रैंक 1 है. तो आई नीड टू चेक क्या 35 या 21 प्लस 22 अप टू 35 क्या मेरे को 420 मिलता है. सबसे पहला तो ये, तो अगर मैं इनका एवरेज देखूंगा तो एवरेज वुड बी 21 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, तो 56 अपॉन 2 दैट इज 28. बिकॉज ये एपी है, मैंने इसका एवरेज निकाल दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2. एंड इफ आई टॉक द नंबर ऑफ टर्म्स, सो वी हैव 15 टर्म्स और 15 टीम्स, सो यहाँ पे सम कितना आएगा 28 इंटू 15, सो 420. इसका मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. दिस वे वी कैन हैव द नंबर ऑफ पॉइंट्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द winning team has got 35 points. So every time 3 points for win, 2 points for draw, and 1 points for lose. So 35, and total number of like I can say winner
plus draw plus loss. The total number of जो matches हैं वो 14 है. Hopefully it is clear, right? Now we have 4 options and we want कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. तो अगर मैं इसकी बात करूँ, if I want to solve minus minus minus, so there is no use of L. So 2W plus D should be equals to 21. 2W plus D equals to 21, or I can say 2W equals to 21 minus D and W equals to 21 minus D upon 2. Is it clear? It means कि जो विनिंग जो नंबर ऑफ मैचेस हैं जो जीते हैं उसने 21 माइनस डी अपॉन 2 के फॉर्म में होना चाहिए. नाउ विनिंग टीम के लिए ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट एटलीस्ट वन मैच प्लेड बाय द विनिंग टीम वाज ड्रॉन. इसका मतलब डी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगा. तो अगर डी की वैल्यू 1 है तो जो विनिंग मैचेस है कितने होंगे, 21 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 20 अपॉन 2. तो ये 10 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब 10 विन मैच हो गए, ड्रॉ 1 हो गया, तो लूज कम से कम 3 होंगे. ठीक है, तो ये मैक्सिमम लूज हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 मैच ही हार सकती है. एंड इट हैड एट मोस्ट 3 लॉसेस. तो यही इस बात का उत्तर है. अगर आप डी की वैल्यू को 2 लगाएंगे, if I am getting that is in this equation d equals to 2, so w is not an integer, वो मिलेगा ही नहीं. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, 2 ड्रॉ नहीं हो सकते. d अगर 3 हो गए तो w जो आएगा दैट इज 18 अपॉन 2, 9 आ जाएगा, राइट. तो उस समय 9 आपके पास विनिंग, तो 9 विन हो गए, 3 ड्रॉ हो गए, तो 2 हारेगा. तो मैक्सिमम 3 लॉस हो सकते हैं. तो that was very beautiful question. Hopefully you got the taste of the question. So moving to the next question. So we have next question and it is saying k is a natural number and x1 x2 x3 x4 are the real number and x1 x2 are the root of the equation x square minus kx plus 35 equals to 0 and x square minus 7x plus k equals to 0. So we have two equation. इसके जो रूट्स हैं वो x3 x4 है, इसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 है एंड ऑल आर रियल एक्चुअली. तो रियल होने का मतलब क्या है, ये रियल है और ये भी रियल है. रियल मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ द इक्वेशंस. सो d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac. सो बी स्क्वायर इसका k है, दैट इज k स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 35. सो k स्क्वायर 140 से ज़्यादा होना चाहिए, greater than 140 or more. And if I use this way, so b square should be greater than equals to 4ac. So here b is minus 7 square is greater than equals to 4 into c into that is k. तो यहाँ से 4k should be less than equals to 49 and k square should be less than equals to 49 upon 4, or I can say so k square is less than 49 upon 4. So यहाँ से अगर हम इसको के स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे दैट वुड बी 12.12 12.25 and here it is k square is greater than, okay just hold on, I think we made some error. It should be 4k, not k square, 4k. Okay, so here k should be less than equals to 12.25. Okay, so k should be less than equals to 12.25 and from here I will be getting that k square is greater than 140. So k should be around square root of 140. So that should be around 12 point something. हाँ 12 point something होगा because 12 का स्क्वायर होता है 144. 11 point something I think आएगा, 11 point something because 12 का स्क्वायर, so it would be around 11 point something और 11 point something आएगा यहाँ पे.
तो के की वैल्यू 11 से बड़ा होना चाहिए एंड 12.25 से छोटा होना चाहिए. सो देर इज अ single natural number in between, that is 12. So from here I'll be getting that is k equals to 12 is the right answer. So k is a natural number, so my answer would be k equals to 12. Moving to the next question. So we have next question. A company manufacturing plastic bottles incurs a cost of rupees 40. So CP is given to us 40 rupees and the number of bottles sold in a month decreases by 20 for every 4 rupees increase. तो सेलिंग प्राइस को अगर हम +4 इंक्रीज करेंगे फॉर ईच बोतल तो क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी 20 से. इफ व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच बोतल वाज 48 रुपीज एंड द नंबर ऑफ बॉटल्स इन दैट मंथ वाज 600. हाँ, तो 600 बॉटल्स प्रोड्यूस कर रही थी कंपनी. सो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट. तो अगर हम इसमें बात करते हैं, लेट सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय like I'm saying any variable, for example m times. So selling price would be 48 initial plus 4 times of m and cost price remains as it is 40 rupees. So profit would be 48 plus 4m, ये आपके पास selling price minus cost price, that would be 8 plus 4m. Hopefully it is clear. Now if I talk about the quantity produced, that would be 600 initially, but it has to be decreased in the multiple of 20. whatever be the time जो हम सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं उतने टाइम आपको 20 से कम करना पड़ेगा, दैट वुड बी 20. सो प्रॉफिट वुड बी 600 माइनस 20m, दैट इज क्वांटिटी इनटू द यूनिट प्राइस का प्रॉफिट है 8 प्लस 4m. तो एक काम करते हैं, जो जो कॉमन है यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है मेरे पास एंड यहाँ से 4 कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट विद 30 माइनस m इंटू 2 प्लस m, राइट. So that would be 80 into 60 plus 30m minus 2m minus m square. So 80 times of minus m square plus का 28m and plus का 60, right. So minus भी कॉमन लेते हैं तो m square minus का 28m minus 60. Hopefully it is clear. Now if I want to maximize, I'll be using the complete whole square method. तो यहाँ पे 28m है, इसका 28 का आधा करेंगे, दैट वुड बी 14. तो उतना ही हम स्क्वायर ऐड करेंगे, 196 माइनस 196 माइनस का 60. सो दैट विल गिव मी द वैल्यू. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए मैक्सिमाइजेशन के लिए, या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी है कि m की जो वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a पे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आती है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 1. सो 14 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, उतना भी नहीं करते, चलो m की वैल्यू 14 डायरेक्ट आ गई, राइट. तो m इज अ डायरेक्ट रिजल्ट आपको 14 देने वाला है. आपको ये पता होना चाहिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, तो इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो अकर होती है ये होती है माइनस बी अपॉन 2a पर, और वैल्यू होती है मैक्स या मिन वैल्यू जो होती है दैट वुड बी, या तो आप x की वैल्यू के यहाँ पे पुट कर दीजिए या फिर माइनस का d अपॉन 4a. डी अपॉन 4a डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, कुछ पता होना चाहिए आपको. सो m इक्वल्स टू 14 वी हैव. सो प्रॉफिट मैक्सिमम जो आएगा, m की वैल्यू 40 रखेंगे यहाँ पे 14. सो 80 इंटू 30 माइनस 14 और 2 प्लस 14. सो दैट वुड बी 80 इंटू 16 इंटू 16, राइट. तो 16 इंटू 16 यू नो that would be 256 into 80, तो 0 8 6 48 8 5 40 44 and 8 5 8 2 16 or 420. So 20,480 is the maximum profit. So hopefully you got it.
and this was very beautiful question. Moving to the next question. So we have another beautiful question, that product of the length of sides of a right triangle is 3360. So let the side be ABC. So इनका प्रोडक्ट आपको 3360 दे रखा है, एंड द पेरीमीटर a plus b plus c इक्वल्स टू 112. सो वी वांट हाइपोटेन्यूज कितना होगा, राइट? हाइपोटेन्यूज कितना होगा? सो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? सो आई वांट दैट इज पेरीमीटर टू बी द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. पहले तो बेसिक तरीका है, या फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूंगा. इफ आई वांट टू बेसिक सर कैसे होगा, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 112 माइनस सी एंड ए बी इक्वल्स टू 33600 अपॉन सी. 33600 अपॉन सी, राइट? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर. लाइक यहाँ से आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है. तो अगर मैं यहाँ से इस कंडीशन को यूज करता हूँ, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 112 माइनस सी का होल स्क्वायर. ये बहुत क्लमजी सा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट? तो दूसरा हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहूँगा, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है बहुत छोटे नहीं है. तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल पे काम करेंगे. हाँ, हिट एंड ट्रायल ऑलवेज, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंडेटरी है. किसी पर्टिकुलर जो आपके पास आई कैन से ट्रिपलेट्स होते हैं, वहाँ पर ये बात बन सकती है. बट पेरीमीटर बोलता है मतलब 112. तो 112 और फैक्टर ऑफ 112 मेरा काम कर सकता है. तो अगर मुझे थोड़े से फेमस ट्रिपलेट याद आते हैं, आपको भी जरूर से याद होना चाहिए, जैसे 5 12 13. यहाँ पे जो पेरीमीटर बनेगा 30 बनेगा. तो 30 का तो नहीं है ये मल्टीपल 112. और 7 24 25 अगर मैं देखता हूँ, तो 25 24 49 और 7 56. तो 56 का मतलब, यस, इसका मतलब जो 112 है, जो 112 है, इसको तो मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से. 112 इज ए मल्टीपल ऑफ 56. इसका मतलब जो आपके पास साइड्स होंगी वो 112 कब बनेगा, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा. इसका मतलब यहाँ पे 14 डबल करेंगे ना इसको, 48 एंड 50. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 48 एंड 50. So that was the power of triplets, right? So 50 is correct answer. Hopefully you got it, and if you want to solve it algebraically, I told you the way you can solve it. Next question, and it is saying how many 5-digit numbers divisible by 3 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 without repeating the any digit, right? Distinct बनाना है, and 5 digit का नंबर होना चाहिए. So 5 digit का नंबर जरूरी है, that like 0 cannot be at the first place, and it has to be divisible by 3, right? तो 5 digit का जो नंबर है, like a b c d e, it has to be divisible by 3, and rule of 3 बोलता है कि sum a plus b plus c plus d plus e is divisible by 3, right? So if I look at the digits, we have 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. So 5 or 4 9 3 12 14 15, right? So we have to like we have to leave a digit to have 5 digit number, because we have 6 digit. तो एक तो छोड़ना पड़ेगा, तो किस किस को छोड़ेंगे? क्या 5 को ड्रॉप करके नंबर 3 डिजिट से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स नॉट. 4 3 7 to 9 10 नहीं हो पाएगा, तो 5 को ड्रॉप नहीं कर सकते.
1 2 3 4 5, क्या 4 को ड्रॉप कर सकते हैं? 5 3 8 2 10 11, 4 को भी नहीं कर सकते। 3 को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? 1 2 4 5, तो 5 4 9 12 13, यस 3 को ड्रॉप कर सकते हैं। 2 को ड्रॉप कर सकते हैं, 1 2 4 सॉरी 1 3 4 5 5 4 9 12 13 नहीं कर सकते। 1 को, तो 1 तो 2 3 4 5 5 4 9 12 14, मतलब हम 3 को ही ड्रॉप कर सकते हैं। तो 3 और 0, 0 का तो कोई सम में कोई योगदान नहीं है, तो 3 और 0 कैन बी ड्रॉप्ड। होपफुली यू गॉट इट। तो 0 या फिर आप 3 को ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो सपोज 3 इज ड्रॉप्ड, तो अगर 3 को आपने ड्रॉप कर दिया, 1 2 3 4 5, नाउ मेनी प्लेसेस वी हैव? 0 1 2 4 5। तो इस वाले प्लेसेस के भरने के लिए कितने तरीके हमारे पास हैं? आई कैन हैव ओनली 4 वेज, राइट, बिकॉज 0 कैन नॉट कम हेयर। तो आपके पास कोई भी 4 तरीके हैं, फिर आपके पास 4 तरीके हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 4 4 16, 16 इंटू 3 48, तो 96 वेज वी हैव। एंड सिमिलरली 0 इज ड्रॉप्ड, तो अगर आपने 0 ड्रॉप कर दिया तो कोई पंगा नहीं है। 5 वेज वी हैव, 4 3 2 1, बिकॉज 0 नहीं है तो कोई कहीं पे भी आ सकता है। 20 60 120, so 120 plus 96, 216 ways we can have in which we can make the 5-digit number. Hopefully it is clear to you. Now we have the next question. Now it is saying there are 4 straight lines which divide a circle into the greatest number of possible regions, right? So plane division का question है. Suppose we have a circle and we have 4 lines. So for maximum reason I have uploaded the concept video there. Lines have to be non co-planar. कोप्लेनर बोले तो नॉन कॉन्करेंट, बेसिकली नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट लाइन होती है ये, दीज आर कॉन्करेंट, जो कि एक ही पॉइंट से पास होती हैं। दीज लाइंस आर नॉन कॉन्करेंट। तो इफ आई वांट मैक्सिमम रीजन, द लाइन हैज टू बी नॉन कॉन्करेंट दिस वे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ज़्यादा रीजन मिलते हैं, राइट, यू कैन सी। तो अगर हम इन 4 लाइंस की बात करते हैं, सो आई वांट के जो लाइंस है वो नॉन कॉन्करेंट हो दिस वे, राइट। सो वी हैव दिस वे। सो नंबर ऑफ रीजन्स कैसे निकालते हैं? हाँ, नंबर ऑफ रीजन्स, तो नंबर ऑफ रीजन बाय नॉन कॉन्करेंट लाइन, NCL मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, नॉन कॉन्करेंट। जो नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो वी हैव 4 लाइन्स, तो ऑलरेडी जो रीजन इसमें बनेंगे 4 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1, सो 2 2 4 11 रीजन वी कैन हैव। So by the 4 lines we can have how many reasons? We have 11 reasons. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and one more I think left. दोबारा से देखो यहाँ पे, अब देख लीजिए। So these are 3 lines and I have another 4 lines, right? So this is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? एंड यहाँ पर भी आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ रीजन ओपन है, ये जैसे क्लोज्ड रीजन है, ये ओपन रीजन है। जो ओपन रीजन होते हैं वो ट्वाइस ऑफ n होते हैं नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन की बात करूँगा, वी हैव 8, राइट। तो ओपन हमेशा डबल होता है नंबर ऑफ लाइंस के। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ इट इज सेइंग दैट if 3 additional straight lines are drawn, what is the greatest number of additional reason, right? तो 4 लाइंस है हमारे पास, तो वी हैव रीजन्स हाउ मच? 11. Now we have 7 lines and we want maximum reasons. तो अगेन आई टोल्ड यू जो रीजन बनेंगे, नंबर ऑफ लाइंस 7 8 डिवाइड बाई 2 n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, सो प्लस 1, दैट इज 29। तो एडिशनल कितने रीजन आ गए? दैट आर नथिंग बट 29 minus 11, 18 reasons new have been drawn. So hopefully it is clear.
तो मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन वॉच दैट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगेन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन. 3 की पावर 2x प्लस 5 की पावर x इक्वल्स टू 106 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, राइट. सो इसको मैं 9 की पावर x भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर x इक्वल्स टू 106. दो इट इज नॉट गिवन x रियल है क्या है, बट वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ पे 6 आना है, हाँ? तो 5 जो है, 5 की पावर एनीथिंग ऑलवेज एंड्स ऑन 5. ये तो 5 आना मैंडेटरी है, ठीक है. तो 5 की पावर या तो 5 आएगा, 25 आएगा, 125 कुछ इस तरह से आएगा. 125 तक तो बात ही नहीं जाएगी. तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 पावर ले सकता है. तो अगर ये 5 का स्क्वायर है तो क्या ये 9 का स्क्वायर बन के आपको सही कंडीशन दे रहा है? यस. तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 इसका राइट आंसर है. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो आपको 2 आंसर नहीं करना, आंसर आपको 1 वैल्यू दैट इज 1 इसका राइट. लॉजिकल क्वेश्चन था. कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं एंड बच्चा इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम. A convex pentagon ABCD is inscribed in a circle. So we have to make a pentagon in the circle. It is proper circle has to be made. Suppose so we have a pentagon A B C D E, right? If angle subtended by the side AB at the center, ये 50 डिग्री का एंगल बनाता है. BC is making 80 degree, CD is making 60 degree and D is making 70 degree. ये टोटल कितना हो गया? 70 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 130 प्लस 130 260 हो गया. तो ये 100 बचेगा यहाँ पे. व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल? स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कितना होगा ऑफ द पेंटागन? स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन, राइट. सो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, सॉरी. तो सबसे छोटा एंगल हमको बताना है. सो वी हैव द प्रॉपर्टी दैट इट इज नॉट गिवन. ये आपके पास रेगुलर पेंटागन है, तो सबसे छोटा कौन सा एंगल है ये बताना है. सो वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इफ यू हैव अ सर्कल सेंटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है बाय द कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस, ये हाफ होता है. सो दिस एंगल वुड बी अराउंड 50 का आधा 25, राइट. ये 25 होगा. एंड सिमिलरली अगर हम बाकी पे देखेंगे तो उतना भी वैसे यूज नहीं करना. देखो अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है. इसका मतलब क्या है? ये 50 है, तो ये बाय द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी इट हैज टू बी 130 बैलेंस. तो 65 एंड 65 इधर हो जाएगा. ये 80 है तो 140 के हिसाब से 70 70 हो जाएगा. ये 60 है तो इट हैज टू बी 180 के हिसाब से 60 60. एंड ये 170 तो 55 55 बनेगा ये. एंड ये 40 40 हो जाएगा, राइट. तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल वी हैव टू फाइंड. तो दैट इज 105 यहाँ पे है. ये 95 है. ये 115 है. ये 130 है. ये 135 है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 95 डिग्री. तो ये भी इजी था बट लॉजिक था इसमें. अगर हम दूसरे तरीके से चले जाते तो माइट बी पॉसिबल, वहाँ पंगा होने के चांसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन एंड इट इज सेइंग अ मर्चेंट राइस मर्चेंट sells two varieties of rice A and B. The cost price of the rice are in the ratio 30x और 20x मान लेते हैं. If he sells A at the 15% profit, तो इसको ये 15% प्रॉफिट पे बेचता है. तो 15% ऑफ 30, दैट इज 15% वुड बी 15 अपॉन 100 इंटू 30x. फिर 10% तो इसका 3x हो जाएगा.
एंड 5% वुड बी 1.5, तो 4.34.5x इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एंड इसको 10% लॉस पे बेचता है तो 18x हो जाएगा। एंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बाय द इक्वल क्वांटिटीज की बात भी कर रहा है, राइट? क्वांटिटीज हैज टू बी इक्वल आल्सो। ओके, so suppose we have taken 1 kg, no problem in that. So selling price would be 52.5 combinedly. Find the overall profit or loss made by the merchant by selling equal quantities of both the varieties. And cost price is 50x. So 50x for 2 kg and 52.5 for 2 kg. So profit would be 2.5x for 2 kg, right? तो हमने सेम क्वांटिटी की बात करी है। Now profit percentage would be 2.5 upon 50 into 100, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो सपोज वी हैव x चिल्ड्रन एंड नाउ नंबर ऑफ चॉकलेट को अगर मैं कुछ भी n अज्यूम कर ले तो चिल्ड्रन आपके पास x है एंड उनको कुछ ना कुछ चॉकलेट्स मिली है, दैट इज पर चिल्ड्रन के चॉकलेट मिला है तो 3 बच गया। अभी बोलता है कि हैड देयर बीन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके पास बच्चे जो है 4x हो जाएंगे, might be possible you'll be giving different chocolates number, right? तो यहाँ पे p आपके पास per children आप p दे रहे हैं अभी। now 10 chocolates are left, so we have to find the number of children, right? so यहाँ से अगर हम n को देखते हैं तो इक्वल है x के प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 4xp प्लस 10, तो यहाँ से x के प्लस 4xp हैज टू बी 7, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो k प्लस 4t हैज टू बी 7, राइट? तो x यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि एक नेचुरल नंबर है ऑफ कोर्स। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि तभी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो इफ आई गो बाय द सेम वे, सो आई कैन हैव द 7 एज 1 into 7, तो आई कैन से x की वैल्यू 7 होगी एंड k प्लस 4p हैज टू बी 1। यहाँ पे आई थिंक माइनस का साइन आएगा, राइट? दिस इज माइनस, so k minus 4p has to be 1, राइट? सो माइनस, तो इसकी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 7, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 पॉसिबल है, इसके अलावा कोई इसका पॉसिबल केस है नहीं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लीनियर रेसेस का क्वेश्चन है, ये बोलता है इन 2000 मीटर रेस इफ चरण गिव्स हेड स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू दिनेश, 80 मीटर का गैप है दिनेश और चरण के बीच में एंड स्टिल बीट्स दिनेश बाय 20 मीटर, मतलब यहाँ पे जो चरण है वो विनर है। तो दिनेश हैज टू रन एक्चुअली 2000 माइनस 80 1920 मीटर, राइट? इसको सिर्फ 1920 भागना है, बट फिर भी नहीं भाग पाएगा क्योंकि चरण जीत गया। तो एज यू नो द टाइम अगर सेम होता है, बिकॉज बोथ स्टार्ट रनिंग एट द साइमल्टेनियसली और सेम टाइम, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड रेशियो। तो स्पीड ऑफ चरण और स्पीड ऑफ दिनेश का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस, चरण ने तो पूरा का पूरा 2000 भागा है डिस्टेंस, बट दिनेश ने 20 मीटर कम भागा, यहाँ भी 20 मीटर से हार गया। इसका मतलब इसने 1920 भागना था दिनेश को, 20 और कम करेंगे तो यहाँ पे 1900 आएगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो 20 और 19, इसका मतलब अगर 20 मीटर चरण भागता है तो दिनेश इज ओनली रनिंग 19 मीटर। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ इट इज सेइंग दैट find the distance by which Charan will beat Dinesh when Dinesh give a head start of 80 meter to Charan। तभी चरण आगे है, दिनेश पीछे है, तो कितना अभी भागेगा? लाइक अभी चरण तो ऑफकोर्स जीतना ही है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो चरण को भागना भी 1920 मीटर एंड 80 मीटर ये पीछे है, तो कितने मीटर से हरा देगा, राइट? तो वेरी इजी नाउ
फॉर एवरी 20 मीटर ऑफ चरण देयर इज अ गैप ऑफ 1 मीटर। भाई 1 मीटर का गैप है, पीछे है दिनेश, तो अगर इसको भागते भागते 1920 भागना है, दैट इज 1920, तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गैप 96 मीटर हो जाएगा। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो 96 मीटर का गैप क्रिएट कर लेगा। तो 96 मीटर का गैप तो वैसे हो गया, और 80 मीटर ये वैसे पीछे है दिनेश। भाई 96 मीटर तो यहाँ से इसने हरा दिया, 96 मीटर पहले, और पहले ही ऑलरेडी 80 मीटर का गैप है। आर यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब जो टोटल गैप हो जाएगा दैट वुड बी 96 प्लस 80, तो 176 मीटर। प्लीज एक बार इसको सोचना मैंने क्या किया, राइट? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है ना, आपको देखने में सिंपल लग सकता है, और बहुत सारे बच्चे 96 मार्क करके आंसर गलत करेंगे। भाई 1920 जब ये भागेगा, अगर ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे होता तो 96 का गैप तो तभी हो जाता, बट ऑलरेडी 80 मीटर पीछे है, तो 176 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, so we have next question and it is saying Aniket has 3 पेन स्टैंड्स एंड 13 डिस्टिंक्ट पेन, राइट? तो 3 पेन स्टैंड है उसके पास, सपोज P1, P2 एंड P3, and he has 13 pens. Now it is saying 3 are of red color, 3 रेड कलर के हैं। 1 स्टैंड कैन होल्ड 6 पेन। सपोज पहले में 6 पेन आते हैं, इसमें 4 पेन आते हैं, एंड तीसरे में 3 पेन आएंगे। Now many ways Aniket can put all 13 pens in 3 pen stands such that all red ink pen are together और सेम पेन स्टैंड में। तो या तो यहाँ पे ऑल रेड यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऑल रेड यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऑल रेड यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस है ही नहीं, सारे रेड एक साथ करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 6 पेन का चांसेस था, एंड 3 आपने कर दिए, राइट? 3 तो रेड ने ऑक्यूपाई कर ली यहाँ पे। तो अगर आप सारे के सारे इस वाले में रेड को कर देते हैं, हाँ, तो ऑल रेड इन P1, तो कितने पॉसिबल वेज हैं? तो इन दैट केस आपके पास वी आर लेफ्ट विद, राइट? आप सोच के देखो कि आपके पास 3 के 3 रेड पेन आपने इसमें रख दिए, तो भी 3 स्लॉट और बचे हैं, एंड बाकी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 पेन और है, ठीक है? भाई 13 पेन है, 3 तो यहाँ पे आने मैंडेटरी है, एंड उसके बाद आपके पास ये तरीके। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन पुट दिस वे? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 3 पेन बच गए हैं, तो एक काम करते हैं, भाई आपके पास देखा जाएगा तो टोटल so we have to fix red, and we have 3 slots and 10 pens, so I'll be selecting any 3 pens, so 10C3 multiplied by, right? अभी आपके पास 7 slots और हैं, we have 7 slots। ये आपके पास 13 पेन है, 13 जगह है, और 10 पेन में से आपने 10 तो फिक्स कर दिए, बाकी आपने चुन लिए, भाई 3 यहाँ पे चुन लिए, और ये तो रेड मैंडेटरी है, तो 6 स्लॉट फिल हो गए। अभी आपके पास 7 पेन है, और राइट 13 पेन है, और 13 ही आपके पास स्लॉट्स हैं, तो कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी 7C4 बचेगा। हाउ कम इट इज 7C4 एक्चुअली? सो हाउ कम इट इज 7C4, राइट? यू वांट टू नो? ओके, देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास पहला पेन स्टैंड है, इसमें 6 पेन आ सकते हैं। वी हैव दूसरा पेन स्टैंड जिसमें 4 पेन आ सकते हैं। वी हैव तीसरा पेन स्टैंड जहाँ पे 3 पेन आ सकते हैं, राइट? अब इसमें से इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि यहाँ पे रेड आ ही गए हैं, और रेड इज ग्रीन नाउ, ठीक है? सो वी हैव 3 स्लॉट्स इन द पेन 1 स्टैंड, एंड वी हैव 10 पेन्स, बिकॉज टोटल 13 पेन्स थे। टोटल वी हैव 13 पेन्स, बट 13 पेन में से 3 तो रेड माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे, राइट? तो 10 में से हम
किन्हीं भी 3 को सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाइड। अभी यहाँ पे आपके पास 4 स्लॉट्स हैं और 7 पेन है। हाँ भाई 7 कैसे हैं, 13 में से 3 रेड गए, 3 आपने यहाँ कर लिए तो 7 बचे हैं। तो किन्हीं भी 7 में से आप 4 स्लॉट्स के लिए 7C4, बाकी बचेगा 3C3। तो ये तो 1 हो जाएगा बेसिकली, इसलिए मैंने 7C4 लिखा था। सो 10C3 इज 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 339 टू 4 120 एंड 7C4 इज 7C4 7C3 के इक्वल होता है NCR इक्वल्स टू NC N माइनस R, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 765 3 2 1, so that would be 35। so 35 into 0 35, 35 into 2 70, ये 42 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो पहले वाले पेन स्टैंड में 42 नंबर ऑफ वेज भी है। होपफुली इट इज क्लियर। तो 4200, तो यहाँ पे 4200 है। अभी सेकंड बोलता है दैट इज ऑल रेड इन पेन स्टैंड 4 पेन वाला जो है, ठीक है, इसको हम P2 की बात करें तो 1 2 3 4, फिर P1 1 2 3 4 5 6, देन फिर P3। तो यहाँ पे 3 तो रेड दे दो, तो 10 में से एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव भाई 4 चले गए, 13 पेन में से 4 तो ऑक्यूपाई हो गए, 9 बचे हैं। एंड 9 में से आप एक काम करो 9C6 इधर दे दो, एंड इसके पास 4 6 और 3 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर 3C3। तो सारे के सारे पेन हो गए, नहीं हो गए भाई? यहाँ से देखो ना, आपके पास 10 में से एक स्लॉट चूज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद 9 पेन बचे हैं, उसमें से 6 चूज कर लिए, फिर 3C3। तो दिस इज 10 इंटू 9C6, 9C6 is 9C3, that is 9 into 8 into 7 and 3 into 2 into 1, 3 3 9 2 4 8, this is 7 into 12 84। तो ये हो जाएगा into 1 840 वेज, so that would be 840, राइट। तो इस वाले केस में आपके पास 840 आएगा, 840। एंड अगर मैं थर्ड पेन स्टैंड में देता हूँ 3 रेड पेन, तो 3 रेड पेन इन P3, तो यहाँ पे तो एक ही तरीका है, दैट इज 3C3 ऑल रेड। फिर अगर मैं P2 को भरता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, P1 को भर लेते पहले। तो वी हैव 10 पेन लेफ्ट, तो 10C कितना आएगा 6 इंटू 1 2 3 4, तो बचेंगे आपके पास 4 ही पेन बचेंगे, ठीक है। तो 10C6 इसमें आ जाएगा, एंड उसके बाद 4C4 इसमें आ जाएगा, वन एंड द सेम थिंग। तो 10C6 equals to 10C4, so 10 9 8 7 and 4 3 2 1, so this is 4 2 8 and 3 3 9 210। यहाँ पे आपके पास 210 तरीके हैं। तो टोटल कितने हो गए? वी हैव नंबर ऑफ वेज, सो इनिशियली 4200 प्लस फॉर सेकेंड वन वी हैव 840 एंड थर्ड वन वी हैव 210, so this is 50 and this is 5250, so 5250 इसका राइट आंसर है। So that is the end of this video, and see you in the next video. Till then you can subscribe to the selection classes in PDF। आपको the selection classes का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। सारा कंपाइल करके दूंगा, अभी नहीं दूंगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जब आएगा या फिर आपको मिल जाएगा। So see you in the next video. Till then, bye, take care.